गुजरात में आज क्या बदला, किस खबर ने मचाई हलचल और कौन सी कहानी बनी सबसे बड़ी सुर्खी? हर सवाल का जवाब मिलेगा सिर्फ गुजरात बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजनीति के गलियारों से लेकर आम आदमी की आवाज तक, अपराध से लेकर कारोबार और विकास की बड़ी तस्वीर तक, हम लाए हैं गुजरात की हर अहम खबर बिल्कुल सीधे और बेबाक अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है गुजरात का सबसे तेज और दमदार न्यूज बुलेटिन। बताएंगे कैसे अहमदाबाद में नाना चिलोडा में दुकानों में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया। साथ ही दिखाएंगे कैसे गुजरात एटीएस ने बटाला फायरिंग केस में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अहमदाबाद के नाना चिलोडा में दुकानों में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नरोदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नरोदा पुलिस स्टेशन के पीआई बीएम कटारिया के अनुसार तोड़फोड़ में एएमसी का कोई अधिकारी शामिल नहीं था, फिर भी एएमसी का गलत नाम इस्तेमाल कर उसे बदनाम करने की शिकायत पर एएमसी अधिकारी ने राजेश और कमल नाम के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ किसने की, इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और इस संबंध में जाँच नहीं की गई है। आपने कॉर्पोरेशन का बोला ना? आपने कॉर्पोरेशन का बोला ना? बोला मेरा वीडियो दिखाओ। हम कॉर्पोरेशन वीडियो दिखाओ। से कौन आया? नहीं साहब, मैं किसी से कुछ नहीं बोला हूं। वो सेठ लोग में कौन आपके मालिक थे? कौन है? ગઈકાલે આ બનાવ બનેલો એમાં જે વિડીયો બનેલો અને વિડીયોમાં જે કોઈ વ્યક્તિ બોલે છે કે ભાઈ એએમસીના અધિકારી, ખરેખર એએમસીના અધિકારી તે હતા નહીં, એએમસીએ આ કામગીરી કરી નથી કે એવું કંઈ થયું નથી, પણ છતાંય ખોટું એએમસીનું નામ બદનામ કરવા માટે થઈ આ જે વસ્તુ બની છે એ વિડીયોના આધારે અમે આજે ગુનો દાખલ કર્યો છે, ખોટું નામ ધારણ કરી અને નામ બદનામ કરવું। સાહેબ, આ કોની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, કોણે કરાવી છે અને શું ફરિયાદ? એએમસીના અધિકારીશ્રી દ્વારામાં ફરિયાદ આપવામાં આવેલી છે અને જે વ્યક્તિ વિડીયોમાં બોલે છે એ એઝ એ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકેની નોકરી કરતા હોય છે અને ત્યાં બીજા જે 25-50નું ટોળું ભેગું થયું હતું એમાંથી કોઈ આ બોલી ગયું છે, એમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે 2 વ્યક્તિ વિરુદ્ધમાં। નામ શું છે આ બંને વ્યક્તિઓના અને બેકગ્રાઉન્ડ કઈ જાણવા મળ્યું છે? ના, હજી એમાં તપાસ ચાલુ છે। નામ ખાલી એક રાજેશ અને બીજું કમલ, એવા 2 નામ આવ્યા છે જેમના વિરુદ્ધમાં અમે ફરિયાદ દાખલ કરી છે। સર, હકીકતમાં પોલીસ તપાસમાં સામે શું આવી છે? ડિમોલેશન કોણે કર્યું? કારણ કે કોર્પોરેશન કે અમે કર્યું નથી। ના, ડિમોલેશન બાબતની હાલ અદ્દિન સુધી અમોને કોઈ લેખિત કે કોઈ ફરિયાદ મળેલ નથી। એ કંઈ મળશે તો અમે આગળ તપાસ કરશું। વેપારીઓ દ્વારા આપને કોઈ રજૂઆત? નહીં, કોઈ રજૂઆત નહીં। ઓકે ભાઈ, આમાં સર કલમો કઈ કી છે આપણે? આમાં ઇમ્પર્સનેશનની છે, બીએનએસએસની કલમ। કોર્પોરેશન એક વાત એવી પણ આવી હતી કે કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે અને એક વાત એવી આવી હતી ખાનગી પાર્ટી દ્વારા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું। એ આપણે પ્રાથમિક તપાસમાં શું આવ્યું છે? કોર્પોરેશન દ્વારા હજી એવી કોઈ પ્રકારની લેખિત કે પેલી કોઈ મૌખિક ફરિયાદ મળેલ નથી, એટલે તપાસ આપણે કરી નથી। એવું કંઈ મળશે તો તપાસ કરશું। સાહેબ, આ બંને આરોપીઓની પ્રાથમિક તપાસમાં કઈ જાણવા મળી છે? ક્યાં છે હાલ, શું કરી? ના, હજી સુધી એવું નથી મળી આવ્યું। સર, સિક્યુરિટી બાઉન્સર પણ એવી વાત છે કે રાખવામાં આવ્યા હતા, એ શું વાત છે? એ મતલબ એ તો અડખે પડખે જે બધી જગ્યાઓ હોય છે એ પોતાના માટે જે રાખતા હોય છે એ અલગ છે, અને આ તો જે જગ્યા હતી એ પણ અલગ હતી। એ મતલબ મેઇન રોડ ઉપરની જગ્યા છે આ તો। સાહેબ, ફરિયાદમાં શું શું ઉલ્લેખ કરવામાં કે બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? બસ આ જ વસ્તુ કે ભાઈ એએમસીનું ખોટું નામ લઈ અને એમને બદનામ કર્યા છે, તો એ ખરેખર જે હતું જ નહીં એવું ખોટું ઊભું કરીને કરે એના માટેની ફરિયાદ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात एटीएस ने पंजाब के बटाला फायरिंग केस में वांटेड आरोपी सुखमिंदर सिंह उर्फ सुखी को 22 अगस्त 2026 की शाम पालनपुर के होटल सुंदरा से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। शुरुआती पूछताछ में सुखमिंदर सिंह के जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। एटीएस के अनुसार 20 जुलाई को उसने अपने साथियों साहिब दीप सिंह, गगनदीप सिंह और विक्रमजीत सिंह उर्फ विकी के साथ शिकायतकर्ता हरदीप सिंह के शेड के पास फायरिंग की थी। इसके बाद वह विक्रमजीत सिंह उर्फ विकी के साथ हरमीत कौर के घर गया, जहां अपनी लाइसेंसी 30-6 राइफल चचेरे भाई संतुष्ट सिंह को दे दी और बाद में दिल्ली, हैदराबाद व नांदेड़ होते हुए पालनपुर पहुंचा। एटीएस के मुताबिक सुखमिंदर सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश, फायरिंग, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी की जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी है और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पंजाब पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात एटीएस ने पंजाब के बटाला फायरिंग केस में वांटेड आरोपी सुखमिंदर सिंह उर्फ सुखी को 22 अगस्त 2026 की शाम पालनपुर के होटल सुंदरा से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक सुखमिंदर सिंह के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। शुरुआती पूछताछ में
गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।